नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो में हम आपके प्रदेश, आपके राज्य के मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी, पूरी खबर आप तक पहुंचाते हैं और वो डिटेल हम आप तक देते हैं कि आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने आज दिन भर क्या कुछ किया है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल हम आपको इस अपने बुलेटिन में देते हैं। तो आज शुरुआत करेंगे अपने बुलेटिन की, लेकिन शुरुआत देश के प्रधानमंत्री के साथ। तो गुजरात में इस वक्त जबरदस्त चुनावी माहौल बना हुआ है। तमाम दल गुजरात में रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी गुजरात चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। मिशन गुजरात के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोडासा में चुनावी जनसभा विजय संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पूरे गुजरात में बीजेपी के झंडे को शानदार जीत के साथ लहराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह गुजरात के लोगों को सोलर एनर्जी से अतिरिक्त बिजली पैदा करने और इससे पैसा कमाते हुए देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव में अब छतों पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। वहां लोग अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्स्ट्रा बिजली को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरे गुजरात में दोहराना प्रधानमंत्री चाहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा वर्ष में 3 વાર એના ખાતામાં સીધા પૈસા જમા કરાય છે। આ જિલ્લામાં 2 લાખ કિસાનોના ખાતામાં 400 કરોડ રૂપિયા જમા કર્યા છે। ભાઈઓ 400 કરોડ રૂપિયા તમારા ખિસ્સામાં 400 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યા હોય ભાઈઓ, તમારી આવતીકાલની ઉજ્જવળની ગેરંટી લઈને અમે આવીએ છીએ। અને એટલું જ નહીં, મારા નાના ખેડૂતો આખા દેશમાં જે મોટું અનાજ પકવે છે, જુવાર બાજરો જેવી અનાજ પકવે છે, આપણે આખી દુનિયામાં 2023 મિલેટ યર ઉજવવા માટેનું યુએન નેશનને વિનંતી કરી હતી, યુનાઇટેડ નેશન્સને। અને 2023નું વર્ષ આખી દુનિયા મિલેટ વર્ષ બનાવવાની છે। મિલેટ એટલે આપણા જાડું અનાજ, જુવાર ને બાજરો ને એવું બધું। આખી દુનિયા, તમે વિચાર કરો, આખી દુનિયામાં જવાર બાજરાની આવી જે રાગી ને આ બધું જે છે ને, એનું મોટું બજાર ઉભું થવાનું છે। અને એનો લાભ આખા ભારતના નાના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે। મારા અરવલ્લીના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે, મારા ઉત્તર ગુજરાતના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે। ભાઈઓ બહેનો, ગામડાનો વિકાસ, આજે બધા રિપોર્ટ કહે છે કે ભારતની અંદર ગામડામાં ગરીબી તેજ રીતે ઘટી રહી છે, કારણ વિકાસના ફળ હવે ગામડા સુધી લઈ જવાનું કામ ચાલ્યું છે। ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ કરવો હોય ને તો જેમ પાણીનું મહત્વ છે ને, એ જ રીતે વીજળીનું મહત્વ છે। અને અંધારા જ્યાં સુધી દૂર ના થાય, વીજળી ના આવે તો ભાઈઓ બહેનો ક્યારે પ્રગતિ શક્ય ન બને। દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે। આજે તમે મોબાઈલ વગર તમારામાંથી એ કઈ બેઠો નહીં હોય, વીજળી ન હોય તો ચાર્જ ક્યાં કરાવવા જશો તમે? કોના ખિસ્સામાં મોબાઈલ આવે? પણ આ વીજળી કોકે નાખીએ છીએ, મહેનત કરીએ છીએ ને। આપણા ગુજરાતમાં વીજળીના ઉત્પાદનમાં આપણે એટલા બધા ગયા, એટલા બધા નવા વીજળીના કારખાના ઉભા કર્યા। આજે વીજળીમાં ગુજરાત સરપ્લસ થઈ ગયું છે। સરપ્લસ, આજે ગુજરાત જરૂરત કરતા વધારે વીજળી ઉત્પાદન કરતું થઈ ગયું છે। અને વીજળી આવી, આ કોરોના કાળમાં મોબાઈલ ફોન હતા, વીજળી હતી તો ગામડામાં ઘરે બેસીને પણ બાળક મોબાઈલ ફોન પર ભણી શક્યું। આ કામ આપણે કર્યું છે। અને હવે તો 5G લાવવાના છીએ। 5G આવશે લાગી નવી ક્રાંતિ આવવાની છે। ભાઈઓ બહેનો, આ પરિવર્તન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો દ્વારા ઈમાનદારીપૂર્વક કરેલા કામોને કારણે થયું છે। આજે ગુજરાતમાં વીજળી પેદા કરવાની ક્ષમતા પહેલા કરતા 5 ગણી વધારે છે। આજે ગુજરાતમાં વિન્ડ એનર્જી, પવનચક્કી 5 ગણી કરતા વધારે વીજળી આપણે પેદા કરીએ છીએ। આજે ગુજરાતમાં સોલર પાવર, આપણે સોલર પાવરનો એક પ્રોજેક્ટ અહીંયા શરૂ કર્યો, તમને બધા પડોશમાં જ ખબર છે।
આજે 10 ગણી વીજળી સૂર્ય શક્તિથી પેદા કરવાનું કામ આજે પણ કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, ઘેર ઘેર સોલાર રૂફટોપ એની ચિંતા કરીએ છીએ. અને મારું તો સપનું છે ભાઈઓ, હમણાં તમે મોઢેરાનું વાંચ્યું હશે, મોઢેરાની અંદર આખું ગામ આપણે સૂર્ય શક્તિથી ચાલતું કરી દીધું છે. ઘેર ઘેર ઉપર છત ઉપર સોલાર પેનલો લગાવી છે. એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું. મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે. એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ. और अब बात उत्तर प्रदेश की हम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांकी में जिले को बड़ी सौगात देने के साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज में बटन दबाकर जिले में 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश प्रदेश के हर कोने का व्यापक विकास करने की है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने लगातार सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड में सबसे पहले हर घर पेयजल उपलब्ध कराने का काम किया। हर घर में जल निगम नल के जरिए से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहा है। शुद्ध जल से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नई दिल्ली से झांसी की दूरी कम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हमने तो रिकॉर्ड समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा किया। आज बुंदेलखंड में बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार भी मिला है। बुंदेलखंड डकैती से मुक्त हुआ है और साथ ही अपराधियों का बोलबाला अब खत्म हुआ है। तो 322 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का हमें यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको इन योजनाओं के लिए आप सभी झांसी वासियों को हृदय से आपका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करें तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके तो अच्छा होगा। मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर बुंदेलखंडी क्यों। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है, बुंदेलखंड को उससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, जब मैं पहले ही दौरे पे आया था बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के लिए उस समय हम लोगों ने घोषणा की थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, और उसके बाद आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया। अब चित्रकूट से दिल्ली की दूरी सचमुच 5 घंटे में तय हो जाती है। ये वही बुंदेलखंड था जहां से आवागमन अत्यंत दुरूह था, आज दूरी घट चुकी है, आवागमन आसान हो चुका है। बुंदेलखंड जल के लिए तरसता था। ऐसा नहीं कि यहां जल की मात्रा कम रही हो, यहां पे सरफेस वाटर पर्याप्त मात्रा में था। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जब हम लोगों ने बुंदेलखंड की पेयजल की स्कीम को बनाया था, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को बनाया और उसके बाद आज
की स्थिति यह है कि बुंदेलखंड के हर गांव और हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के हम नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम लोग करेंगे। झांसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने प्रयागराज को 1295 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें से 325.16 करोड़ की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही 969.57 करोड़ की 249 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार में किसी गरीब, व्यापारी, बेटी और युवा के हितों के साथ खिलवाड़ संभव नहीं है। सालों तक जो माफिया प्रयागराज के विकास में बैरियर बने रहे, गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जे करते रहे, जिन्होंने युवाओं के साथ छल किया, आज सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति की सख्त कार्यवाही से कराह उठे। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर आज प्रयागराज में गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। आगे भी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो अवैध कब्जे को छुड़ाया जाएगा। माफिया की संपत्ति पर गरीबों के लिए घर बनाया जाएगा। प्रयागराज से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, जिनमें नगर निगम के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर एक एफएसएल की लैब का उद्घाटन भी हो रहा है। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, आईटीआई और तमाम अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, सैनिक कल्याण से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही पेयजल की स्कीम के भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर एक साथ 1295 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं को आज हम सब यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2019 में बना प्रयागराज का ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम प्रयागराज के अंदर संपन्न हुए हैं और वे संपन्न कराया जा रहा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी हो रही है, ऐसे ही भाइयों बहनों हम लोग अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो लोग बचे हुए परिवार हैं, उन लोगों को भी शुद्ध पेयजल के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सरकार आम जनमानस की सुविधा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और अगर हमें डबल इंजन की सरकार तब अपनी कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक उन्हें बढ़ाने में सफल होती है, तब जब उनके साथ स्थानीय निकाय की संस्थाओं का योगदान भी उसी तत्परता और निगति के साथ होता है। आपने देखा होगा 2019 का कुंभ नगर निगम में हमारा बोर्ड था, प्रदेश और केंद्र में सरकारें थी, उसे हमें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और इसलिए भाइयों बहनों आज आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को शौचालय की सुविधा, हर गरीब को विद्युत कनेक्शन की सुविधा, हर गरीब को उज्ज्वला योजना की सुविधा, हर स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। तो साथ साथ भाइयों बहनों आपने देखा होगा कि तमाम योजनाओं को उन तक पहुंचाने में भी जहां मदद मिली, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में
उत्तर प्रदेश के बाद अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर के आखिरी दिन की शुरुआत योगा शिविर से हुई। एकेडमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य सचिव एएस संधू और तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने योग किया। योग प्रशिक्षकों ने सभी योग के अलग अलग आसन कराए। चिंतन शिविर से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकेडमी परिसर के अंदर ही मॉर्निंग वॉक भी किया। इस दौरान वो एकेडमी के गेट तक गए। वहां पर सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एकेडमी परिसर में राउंड भी लगाए और साथ ही स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के पास बैठकर उन्हें नमन भी किया। और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली में श्री महावीर जी में आयोजित महामस्तभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और साथ ही महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगवान महावीर के आदर्श जीवन, उनके सिद्धांतों को राष्ट्र विकास और कल्याण के लिए आत्मसात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महावीर जी की जयंती पर क्षेत्र में दो समाजों की तरफ से निभाई जाने वाली परंपरा सर्वधर्म सर्व जातीय समावेश का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पंचायत मॉडल के रूप में क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से भी देश को भारत जोड़ो यात्रा सौगात देने का भी जिक्र किया। हम आपको बता दें, यहाँ राष्ट्रीय एकता शांति स्थापना से प्रेरित भारत जोड़ो यात्रा, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को जाति धर्म से परे होकर मानवता की सोच रखनी चाहिए। एक बार सबको जोरदार तालियां। पंजाब साफ सफाई अच्छी सड़कें, अगर उद्योग में सुंदर होने मॉडल हो। और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी आरक्षण बढ़ाने के लिए बघेल सरकार विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक लेकर आएगी। इसके लिए आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में आरक्षण बढ़ाने पर फैसला हुआ है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1 से लेकर 2 दिसंबर को आयोजित विधानसभा विशेष सत्र में एससी 13 और ओबीसी 27, आदिवासी आरक्षण 32% करने के लिए सरकार विधेयक पारित करेगी। दरअसल भूपेश कैबिनेट की बैठक में विशेष रूप से आरक्षण के मामले में ही चर्चा हुई और इस बैठक में एससी एसटी ओबीसी वर्ग के आरक्षण संशोधन विधेयक साल 2022 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके विधेयक की जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था, तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है, उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी एक्ट में लाया जाएगा। और मिस्टर सीएम में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।